Good morning, 11th class. How are you all? Hope you all are good. So class, today we will be starting with our next chapter, the new chapter, that is chapter number 4, the Central Islamic Lands. Okay. And in this chapter, we will be witnessing and we will be noticing few new changes that will be occurring around the यूरोपियन कॉन्टिनेंट। और जहाँ पे हमने पिछला चैप्टर एंड किया था, स्पेसिफिकली जब हम बोलते हैं रोमन सिविलाइजेशन का, रोमन एम्पायर जो एक्सपैंड हो रहा था, टुवर्ड्स द एंड हमने पढ़ा था राइज ऑफ इस्लाम और जो इस्लामिक लैंड्स का एक्सपेंशन है, दैट वाज द बिगेस्ट पॉलिटिकल चेंज दैट अकर्ड इन द मिडिवल वर्ल्ड। ठीक है, तो इसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इन दिस वी विल स्टडी अबाउट not only the political changes that are existing, but along with the political changes we will also see lot of changes related to cultural development. There will be a new religion that will become more important, and how will this you can say section जो cultural development हुई है, religious development हुई है, ये political outlook कैसे लेती है, and how does this group become so important and then start expanding over the major part of the border. ठीक है, so let us start now. Whenever we talk about any chapter in history, we know सबसे पहले we need to know the sources, यानी जो हमें उस time period के बारे में जैसे हमें पता चलता है, simply because we are not living in that time period, तो हमें वहां के बारे में किन चीजों से पता चलता है, those are called the sources of history, as we have studied in other chapters also. So let us now start with this chapter where we will today be talking about the sources and few important details regarding this chapter. Now, as we enter the 21st century, we know that there are over 1 billion Muslims living in all parts of the world, and they are the citizens of different nations. ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर नेशन में ही सारे के सारे मुस्लिम्स रहते हैं. They are spread all over the world. They are citizens of different nations. They speak different languages. They even dress differently. So the processes by which they became Muslims were varied, and so were the circumstances in which they went their separate ways. यानी though all of them are Muslims, believers of the same God, but वो कन्वर्ट कैसे हुए थे, या हाउ डिड दे बिकम मुस्लिम, दैट इज डिफरेंट फॉर एवरीवन, डिपेंडिंग वो कहाँ पे थे, उनकी क्या कल्चरल हिस्ट्री थी उससे रिलेटेड, और वो अभी उनकी सिचुएशन कैसे है, दैट इज ऑल्सो टोटली डिफरेंट. दैट मीन्स अ मुस्लिम लिविंग इन पर्टिकुलर कंट्री may be leading totally a different life as compared to other Muslim living in the other part of the world. ठीक है, so now before I move on, please keep in mind that here we are focusing on historical part. So whenever we are talking about any religion, please we do not need to just look at it on the base of religion and the beliefs जो हमारे हैं, but हमें यहाँ पे as historians we believe and we you can say interpret things only on the basis of sources है. तो यहाँ पे अगर जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं is just on the basis of sources, not on any individual's perception of that religion. ठीक है, so now moving on to the next part of it. Yet the Islamic community has its root in a more unified past, क्योंकि somewhere हम देखेंगे around 1400 years ago जो मेन ओरिजिन कहाँ से हुआ था, अरेबियन पेनिनसुला से. अरेबियन पेनिनसुला हमें पता है अरब वाला जो एरिया है टुवर्ड्स दी, हम देखेंगे जब हमने ये रोमन सिविलाइजेशन पढ़ा था, जो उनका जो ईस्टर्न पार्ट वाला साइड है, और अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो टुवर्ड्स दी वेस्टर्न साइड ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वो वाला जो हिस्सा वहीं पे स्टार्ट हुआ है, ओरिजिन हुआ है दिस रिलीजन का. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट द राइज ऑफ इस्लाम, कैसे वो एक्सपैंड हुआ फ्रॉम इजिप्ट टू अफगानिस्तान, एंड दिस इज बेसिकली द कोर एरिया ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन. किस कहाँ पे डेवलप हुई थी, इसी एरिया में डेवलप हुई थी फ्रॉम अराउंड 600 टू 1200. इन दी सेंचुरीज इस्लामिक सोसाइटी जो है बहुत सारे चेंजेस आए हैं, चाहे पॉलिटिकल चेंजेस हो चाहे कल्चरल चेंजेस हो. एंड इसके साथ साथ हम देखेंगे कि ये जो टर्म इस्लामिक है इज यूज नॉट ओनली फॉर प्योरली रिलीजियस सेंस बट ऑल्सो फॉर द ओवरऑल सोसाइटी. ठीक है, यानी हम अगर जैसे हम इस्लाम की बात करते हैं, इफ आई आस्क यू व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इस्लाम, यू विल से द रिलीजन फॉलोड बाय मुस्लिम्स.
बट हम बहुत बार ये जो टर्म है इस्लामिक ये यूज कर लेते हैं, नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट देयर रिलीजन बट ऑल्सो कल्चरली जो इनके बिलीव्स है, जो आइडियोलॉजी है कि ये इस्लामिक आइडियोलॉजीज है, ठीक है। तो रिलीजन के बेसिस पे नहीं, जो उनका सोशल स्ट्रक्चर है और जो उनका कल्चरल पैटर्न है उसके हिसाब से we generally connect it to this religion called Islam. Now in this society not everything that was happening originated directly. So now we need to understand here that अगर हम इनकी सोसाइटी की बात करें तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली रिलीजन से हुआ है, बिकॉज दिस इज अ सोसाइटी जहाँ पे हम देखेंगे मुस्लिम्स और बाकी उनके जो फेथ है वो समवेयर रिकॉग्नाइज्ड एज सोशली डोमिनेंट। इसका मतलब है here we see that in this society everything that was happening originated directly from the religion, but it took place in a society where Muslims and their faith were recognized as socially dominant. यानी सिंपल चीज में ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो सोसाइटी स्टार्ट हुई है, इनके जो बिलीव्स है, जो कल्चरल डेवलपमेंट है, जो कल्चरल आइडियोलॉजी है, वो बेसिकली डेवलप हुई थी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू देयर रिलीजन ओनली। रिलीजन के बेसिस पे ही जिस हिसाब का इनका स्ट्रक्चर है दैट एक्चुअली गॉट डेवलप। एंड इसके अलावा हम देखेंगे कि नॉन मुस्लिम्स जो है दे ऑलवेज फॉर्म्ड एन इंटीग्रल पार्ट इफ सबऑर्डिनेट पार्ट ऑफ द सोसाइटी एज डिड ज्यूज इन क्रिश्चियनिटी। ये बोल रहे हैं इफ आई से दैट दिस इज वन एरिया जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल फॉलो इस्लाम एज देयर रिलीजन, दैट डज नॉट मीन कि और किसी रिलीजन के लोग वहां रहते ही नहीं होंगे, ठीक है। इट वाज वन थिंग कि जो बाकी रिलीजन वाले हैं उनको सबऑर्डिनेट कंसिडर किया जाता था। व्हाट डू वी मीन बाय सबऑर्डिनेट? अ बिट यू कैन से लोअर इन देयर स्टेटस, उनसे नीचा माना जाता था, बिकॉज ऑब्वियसली वो पॉलिटिकली डोमिनेंट है तो वो अपने रिलीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे एज कम्पेयर टू अदर। बट हम देखेंगे कुछ ऐसी चीजें हैं दैट स्टिल दे वर एग्जिस्टिंग एंड इट इज नॉट समथिंग दैट इज एग्जिस्टिंग ओनली इन दिस पर्टिकुलर रिलीजन। क्योंकि अगर हम क्रिश्चियनिटी में भी बात करें तो ज्यूज को सबऑर्डिनेट पोजीशन में जैसे माना जाता है, ये वाली चीज इज वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द रिलीजन। नाउ मूविंग ऑन टू आवर, this was the kind of introduction that we should know regarding our this whole Islamic and जितना भी यहाँ पे development हुआ था। You can clearly see on your screen this map where you can see Arabia कहाँ पे है, towards the eastern side of Red Sea, यानी कि Red Sea के eastern side पे अगर आप देखोगे this area अरेबिया, और फिर इसी के आसपास जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इस्लामिक लैंड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे। कैसे? इनिशियली सिर्फ मक्का में इंपॉर्टेंट था और फिर वो मदीना में पहुंचा, फिर बहुत सारे एरिया पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया, ठीक है। दिस इज द होल एरिया। तो हम देख सकते हैं अगेन इफ यू वांट टू हैव अ लुक ऑन दिस मैप, आप देखोगे इजिप्ट टू अफगानिस्तान इंक्लूडिंग अरेबियन पेनिनसुला, ये पूरे एरिया में ये स्प्रेड आउट है, ठीक है। 600 to 1200 CE के अराउंड दिस वाज समवेयर एक्सपेंडिंग। Now coming on to the sources which tell us about the history of the Islamic lands. ठीक है, please do underline it in your book as well. These are few important terms, especially for your 1 mark question. So our understanding of the history of the Central Islamic lands between 600 to 1200 is based on chronicles or the Tawarikh, which narrates events in order of time. Chronicles, do you know what are chronicles? Whenever we are टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री जनरली इन सीक्वेंस की ऐसे हुआ था, फिर ऐसे हुआ था, फिर ऐसे हुआ था, तो उनके जो टर्म्स थे जो वो यूज करते थे फॉर दिस वो था तवारिख, ठीक है। तो आप जिसका मतलब होता है कि जो इवेंट्स है इन ऑर्डर ऑफ टाइम डिस्क्राइब किए हुए होते हैं। नाउ हम इसको कैसे रिमेम्बर, हाउ विल वी रिमेम्बर दिस टर्म? अगेन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिफिकल्ट टर्म आएंगे, तो सबके लिए कोई ना कोई ट्रिक अपने लिए बना लो। तो तवारिख को क्या हम तारीख के फॉर्म में याद कर सकते हैं? तारीख मतलब डेट वाइज लिखा हुआ है, ताकि सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि ये टर्म बार बार आएगा एंड ऑब्वियसली इट विल आल्सो बी आस्क्ड, सो यू शुड नो कि तवारिख मतलब क्या है। क्रॉनिकल्स जैसे हैं इन ऑर्डर ऑफ डेट मेंशन्ड है, ऐसे हमारे पास दीज आर द इवेंट्स। इसके अलावा हमारे पास सेमी हिस्टोरिकल वर्क्स है
सच एज बायोग्राफी। सेमी हिस्टोरिकल क्या, हिस्टोरिकल जो टोटली हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है, उसमें हो सकता है कि बायोग्राफीज हो। बायोग्राफीज क्या है, बायोग्राफीज आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज फॉर अस बिकॉज दे टेल अस अबाउट वन पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पर्सन। पर यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा रिलीजियस इंपॉर्टेंट लोग जो हैं उनसे रिलेटेड बायोग्राफीज है, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत लॉजिकल, रैशनल और सोच समझ के करना पड़ेगा। बिकॉज जनरली सपोज इफ इट इज रिटन अबाउट one's religion, if it is written about your religion or my religion and we are the person who are writing it, तो हम ज्यादातर सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स लिखेंगे और हो सकता है कभी कभी एग्जैजरेट भी करें, यानी चीजों को एक्स्ट्रा बताए दैट माय रिलीजन या माय मास्टर जो भी गुरु है, जो टीचर है, वो बहुत स्पेशल है। तो इसीलिए सेमी हिस्टोरिकल वर्क दैट मीन्स हम दे आर इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकली, पर थोड़ा सा हमें कॉशियस होके केयरफुली उसको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। देन इसके बाद हम देखेंगे रिकॉर्ड्स ऑफ द सेइंग्स एंड डूइंग्स ऑफ द प्रॉफिट। इट इज कॉल्ड हादिथ, अंडरलाइन इट, दिस टर्म विल अकर अगेन एंड अगेन, ठीक है। ये क्या है, जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उन्होंने जैसे लोगों को जो भी बताया था हमें ऐसे करना चाहिए, दीज आर द टीचिंग्स, तो उनकी सेइंग्स को रिकॉर्ड किया गया था और उन्होंने जो जो चीजें की थी उनको भी रिकॉर्ड किया गया था, तो इनको क्या बोला जाता था, हादिथ, ठीक है। एंड देन कमेंट्रीज ऑन द कुरान को बोला जाता है तफसीर, ठीक है। व्हाट इज इट, इट इज कॉल्ड तफसीर, दैट इज कमेंट्रीज ऑन द कुरान, यानी कुरान में जो लिखा हुआ है उससे रिलेटेड जब भी कुछ चीजें हमें एक्सप्लेन की जाती थी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। सो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दो वी नो, हम देखेंगे यहाँ पे बहुत कुछ जो है रिलीजियस लिटरेचर से हमें मिला है एज सोर्सेज, बट स्टिल दे प्रोवाइड एन इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स, ओके। इसके अलावा हम देखेंगे द मटेरियल फ्रॉम विच दीज वर्क्स वर प्रोड्यूस्ड was a large collection of eyewitness reports that are called अखबार, ठीक है। अखबार अंडरलाइन करो, अखबार का मतलब क्या होता है, आई विटनेस, कोई भी चीज इवेंट जो किसी ने देखा है उसने उसको जो डिस्क्राइब किया है दैट इज कॉल्ड एज अखबार। सो हमारे पास ये जितने भी हमारे पास वर्क्स हैं एंड द मटेरियल फ्रॉम विच दीज वर्क्स वर प्रोड्यूस्ड, ये है लार्ज कलेक्शन, जो विटनेस उस टाइम थे जिन्होंने देखा था उन्होंने लिख दिया था इनको, और इनके बेसिस पे फिर आगे क्या हुए थे, सोर्सेस डेवलप हुए थे। एंड दीज वर ट्रांसमिटेड ओवर पीरियड ऑफ टाइम ईदर ओरली ऑन पेपर, दैट मीन्स सपोज दिस इज वन पर्सन हु हैज विटनेस समथिंग, he has initially maybe he did not write, he has told to him, ठीक है, इसने फिर इसको बताया, इसने she is the person who has written it, ओके। तो ओरली भी ट्रांसमिट हुए थे, रिटन पार्ट में भी हुए थे। So this was what was happening during this time period and which tell us lot about this time period. अब देखो the authenticity of each report, that is खबर, खबर तो हमें पता है is generally we use for news, तो ये रिपोर्ट हो गई कि जो authenticity है of each report was tested by critical method which traced the chain of transmission, that is isnad, and established the reliability of the narrator. Now what do we mean here, जो भी हमारे पास सोर्स आया है, ठीक है, if suppose he has given a particular source to me that he is the eyewitness who has witnessed this particular thing and then he has told this to him and then he has told to her and she has written it. Now हमारे पास जो वो रिपोर्ट आई है उसको हमें क्या करना है, चेक करना है रिलायबिलिटी, whether this person is somebody very reliable, can I believe that इसने हमेशा सही बातें बोली है, and then second of all इसने हो सकता है इसको सही बोली हो, the second person, तो हमें रिलायबिलिटी चेक करनी है उसकी, बिकॉज हमने बोला ओरली भी ट्रांसमिटेड होता है, लिटरली भी, सॉरी रिटन मैटर में भी, बट द पर्सन who has given this खबर और रिपोर्ट वो कितनी ऑथेंटिक है, that is somewhat that was critically checked. ट्रांसमिशन कैसे हुआ है, from person 1 to 3, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, in between कितने चेंजेस आए होंगे possibly, so वो critically टेस्ट करते थे, whatever we get, what are the information that we get, और फिर जो information आई है वो कितनी ऑथेंटिक है, सिंपल, ओके। देन अलॉन्ग विद दैट हम देखेंगे कि
Although the method was not foolproof, medieval Muslims writers were also careful in selecting their information and understanding the motives of their informants than were the contemporaries in the other parts of the world. Let us now have an example, very simple example, that though obviously 100% proof नहीं है कि कितना सही है कितना नहीं है, but एक चीज है कि when this thing is transmitting, जो ट्रांसमिट कर रहा है उसके पीछे का मोटिव क्या है. Suppose Devendra is telling us about one particular person, that he is a very good believer of Islam, he is doing this, he is doing exactly as said by the Prophet Muhammad, this and that, whatever it is. So I need to check here, is he somebody who is totally devoted to that person and he is suppose maybe related to that person, और इतना biasness है कि he has written so much of positive things. ठीक है, so I need to check the authenticity. Obviously 100% proof नहीं है because I have got the information from her. तो यहाँ पे जो मुस्लिम जितने भी राइटर्स थे या जो ट्रांसमिट करते थे वो क्रिटिकली कोशिश करते थे चेक करने की कि जितने भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आए दैट शुड बी ऑथेंटिक. ठीक है, मे बी if we are talking about the class, I assign monitor a job and somebody told me that, suppose I ask the monitor that you do inform me that who is the best disciplined child of the class, and the monitor tells me the name of the best friend. So I need to check कि really वो authentic है या नहीं है, or maybe she is just telling because she is the best friend. So यानी authenticity check करनी है. This is just an example कि हमें check करना है कि जो person दे रहा है वो कितना authentic है, कितना bias free है, neutral है. ठीक है, so they used to check कि जो इन्फॉर्म कर रहा है उसके पीछे का मोटिव क्या है. उस टाइम पीरियड के हिसाब से बाकी जो कंटेम्पररी राइटर्स लिखते थे इतना वो लोग नहीं चेकआउट करते थे कि वॉट एवर वॉज रिटन वो कितना ऑथेंटिक है या नहीं है, बट दीज पीपल यूज टू डू दिस. बट on controversial issues they reproduce different versions of the same event as they found in their sources, leaving the task of judgment to their readers. Have we see something that they are telling us that these people were very you can say you can say open cited, and they were not biased or not partial. कि कह रहे हैं जो भी क्रिटिकल इवेंट है ना उसके सारे वर्जन जो होते हैं सेम इवेंट के हो सकता है, एक अलग वर्जन राघव ने दिया हो या अलग वर्जन सपोज तोशिता ने दिया हो, वॉट एवर इट इज, बट I am giving you options that this is the version of this student and this is the version of this student. It is up to you to decide कि whether his point of view is correct या his description is correct or her description. ठीक है, so that means they were kind of critical issues पे they were giving options to the people to think who is correct and what was the total event. ठीक है, along with that their description of events closer to their own times is more systematic and basically हम देखेंगे analytical ज्यादा है, less of a collection of अखबार. यानी इनके जो events है description उसमें हम देखेंगे systematic तरीके में ज्यादा है, एनालाइज करके लिखा है, उनको क्रिटिकल अप्रोच है रादर देन बस जो आई विटनेस ने बोल दिया वो लिख लिया. वैसे नहीं है, हर चीज को सोच रहे हैं कि व्हाई डिड दिस हैपन, या अगर ऐसा लिखा उसके पीछे का रीजन क्या है और क्या ऑथेंटिक है क्या ऑथेंटिक नहीं है. देन मोस्ट ऑफ द क्रॉनिकल्स एंड द सेमी हिस्टोरिकल वर्क जो है वो कौन से लैंग्वेज में है, अरेबिक में है. ऑब्वियसली अरेबिक वाज देयर मेन लैंग्वेज, इसीलिए इसी में लिखा हुआ है. द बेस्ट बीइंग द तारीख ऑफ Tabari. ठीक है, this is one example, you need to learn it, which has been translated into English in 38 volumes. Arabic में लिखा हुआ था, इसको translate किसने किया, English में. 38 volumes. Persian Chronicles भी हैं पर कम है, and वो उन्होंने बहुत डिटेल में इराक और सेंट्रल एशिया से रिलेटेड डिस्क्रिप्शंस दे रखी हैं. Christian Chronicles जो हैं they are written in you can say Aramaic language का एक डायलेक्ट है सिरियक उसके है, बट ये भी बहुत कम है हमारे पास, जो हमें हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, बिकॉज अगेन दे आर ऑल्सो टेलिंग इन काइंड ऑफ सीक्वेंस की क्या क्या डेवलपमेंट हुए थे. इन क्रॉनिकल्स के अलावा हमारे पास लीगल टेक्स्ट है,
हमारे पास ज्योग्राफीज है, हमारे पास ट्रैवलॉग्स है, हमारे पास लिटरेरी वर्क्स है। नाउ हमें पता है लीगल टेक्स्ट क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते थे, किस टाइप का लॉ उस टाइम पे फॉलो किया जाता था। ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन है हमारे पास, ट्रैवलॉग्स है। व्हाट इज ट्रैवलॉग्स? जो ट्रैवलर्स आए थे बाहर से, उन्होंने जो जो चीजें लिखी है वहां के बारे में। देन लिटरेरी वर्क्स है जिसमें स्टोरीज है, पोम्स है। एंड यहाँ पे हम देखेंगे दैट वी हैव लॉट ऑफ एविडेंसेस रिगार्डिंग दिस टाइम पीरियड, और अलग अलग लैंग्वेजेस में है समवेयर। देन वी ट्राई टू रिलेट कि सबसे ज्यादा ऑथेंटिक कौन है और कॉमन सिमिलैरिटीज क्या है, जिसके बेसिस में हम बोलेंगे ये चीज तो सब में ही है, तो ऑब्वियसली ये चीज तो ट्रू होगी होगी। देन इसके अलावा अगर हम देख ले डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जो है वो हमारे पास है। द डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जो है फ्रेगमेंटरी पीसेस ऑफ राइटिंग, जैसे कि ऑफिशियल ऑर्डर्स जो है, जो मेन पॉलिटिकल पावर है उन्होंने जो दिए हैं ऑर्डर्स। देन वी हैव प्राइवेट कॉरेस्पॉन्डेंस, एंड ये बहुत वैल्यूएबल रिटन हिस्ट्रीज है, बिकॉज इनमें इवेंट्स और प्रोसेसेस के बारे में, पर्सन्स के बारे में लिखा हुआ है। सिंपल चीज है, बाकी चीजों को तो चेंज किया जा सकता है, पर जो पॉलिटिकल रूलर ने ऑर्डर किया वो तो एज इट इज गया है, तो वो बहुत ऑथेंटिक और रिटन पार्ट हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। देन इट कम्स ऑलमोस्ट एंटायरली फ्रॉम ग्रीक एंड अरेबिक। पेपराई हमें पता है, वो जो पेपरस वाले रीड वाला एक प्लांट होता था जिसमें से वो लोग रिटन जो मटेरियल है वो यूज करते थे। दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड इन आवर चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। तो वही चीज अभी कंटिन्यू हो रही है। इसके अलावा हमारे पास गेंजिया के रिकॉर्ड्स हैं which tell us more about this period। उसके बाद हमारे पास कुछ और एविडेंसेस हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। न्यूमिस्मैटिक्स है। व्हाट इज न्यूमिस्मैटिक्स? स्टडी ऑफ कॉइन्स, अंडरलाइन इट, स्टडी ऑफ कॉइन्स को बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। उसके अलावा हमारे पास एपिग्राफिक एविडेंसेस है। एपिग्राफिक एविडेंसेस क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शंस की जो स्टडी होती है, ठीक है। देन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमें बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं रिगार्डिंग द इकोनॉमिक हिस्ट्री, आर्ट हिस्ट्री, एंड इनके बेसिस पे हम डेट्स वगैरह एनालाइज कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस टाइम पीरियड। क्योंकि ये वाली जो चीजें इंस्क्रिप्शंस वगैरह, दे आर सच मटेरियलिस्टिक सोर्सेज जो बहुत टाइम पीरियड तक सस्टेन रहते हैं। अगर स्टोन वगैरह में एनग्रेव्ड है तो हम रिसर्च से टाइम पीरियड इनका पता कर सकते हैं। Then जो proper histories of Islam है, they began to be written in the 19th century। ये हम देखेंगे प्रॉपर हिस्ट्री लिखी गई थी बाय द यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स इन जर्मनी एंड नीदरलैंड, यानी अब यूरोपियन कंट्रीज में लिखी जाने लग गई थी। अब इससे रिलेटेड हम देखेंगे कॉलोनियल इंटरेस्ट जो था इन द मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, ये रीजन था जिसके कारण फ्रेंच और जो ब्रिटिश रिसर्चर्स है वो इस्लाम को अच्छे से समझना चाहते थे। क्या मतलब है क्लास? वी नो कि जो 19th सेंचुरी है वहां पे यूरोपियन पावर्स कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे बहुत सारी कंट्रीज को। तो अगर वो इस मिडिल ईस्ट में कंट्रोल करना चाहते हैं, उनको इनके कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने इस्लामिक स्टडी पे अब फोकस करना शुरू कर दिया था। क्रिश्चियन प्रीस्ट जो है, दे ऑल्सो पेड क्लोज अटेंशन टू द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम एंड दे ऑल्सो प्रोड्यूस गुड वर्क, although their interest was mainly to compare Islam and Christianity। यानी कि जो क्रिश्चियन प्रीस्ट थे वो भी अब जो पुराने इस्लामिक एविडेंसेस थे उनको पढ़ रहे थे, और उनका मेन एम क्या था? हमें इस्लाम को क्रिश्चियनिटी से कंपेयर करना। एंड उसके बाद हम देखेंगे ये जो स्कॉलर्स हैं जो मिडिल ईस्ट और इस साइड की हिस्ट्री को पढ़ते हैं ना, उनको ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं। ओरिएंटल पास्ट होता है स्टडी ऑफ दिस एंशिएंट सिविलाइजेशन, और ईस्ट वाली जो एरियाज है, ठीक है, जो यूरोप वाले हैं वो अपने ईस्ट वाले को ईस्टर्न एरियाज मानते हैं, यानी टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ यूरोप, जिसमें हमारा एशियन कॉन्टिनेंट आ जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी आ जाएगा और ये मिडिल ईस्ट भी आ जाएगा। तो इन स्कॉलर्स को बोलते हैं ओरिएंटलिस्ट। आर नोन फॉर देयर नॉलेज ऑफ अरेबिक एंड पर्शियन and their critical analysis of the original text। तो इसमें हम देखेंगे कि जो इग्नाज गोल्जिहर है was an Hungarian Jew
उन्होंने इस्लामिक कॉलेज एल अजहर में, जो कि कैरियो में है, वहां पे अपनी पढ़ाई की थी। उन्होंने एक जो अब जिस तरीके से इस्लामिक हिस्ट्री को, थियोलॉजी को, रिलीजन से रिलेटेड चीजों को और उनके लॉज को पढ़ते हैं, वो टोटली एक नए ही तरीके से पढ़ा था। 20th सेंचुरी के जो हिस्टोरियंस है ऑफ इस्लाम, उन्होंने भी लार्जली अब पढ़ना शुरू किया था इन टर्म्स ऑफ ओरिएंटलिज्म, यानी ईस्ट के बारे में ज्यादा पढ़ना। एंड उन्होंने इस्लामिक हिस्ट्री को अब नए टॉपिक्स के थ्रू पढ़ा था। एंड इसमें वो सिर्फ पॉलिटिकल या रिलीजियस हिस्ट्री को नहीं पढ़ते थे, वो बाकी एस्पेक्ट्स को भी पढ़ते थे, जिसमें स्टैटिस्टिक्स कैसी थी, इकोनॉमिक्स कैसी थी, उनकी ह्यूमन बीइंग जो है उनका सोशल बिहेवियर कैसे था, दोज हु वर फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर रिलीजन। तो ये नए एस्पेक्ट आ गए थे ओरिएंटल स्टडीज में, जिसमें सिर्फ रिलीजियस और पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे, लॉस पे फोकस नहीं कर रहे थे, बाकी चीजों पे भी कर रहे थे। तो जो हिस्टोरियोग्राफी ऑफ इस्लाम है, ये गुड एग्जांपल है हाउ रिलीजन कैन बी स्टडीड विद मॉडर्न हिस्टोरिकल मेथड्स by those who may not share the customs and beliefs of the people they are studying. That means the group of people who are studying history, especially Islamic history, जो इस्लामिक रिलीजन में बिलीव नहीं करते हैं, अब वो इन 19th and 20th सेंचुरी नए नए आइडियोलॉजीज ला रहे हैं, नए नए रिसर्च वर्क कर रहे हैं, नए तरीके हैं उनके स्टडी करने की, एंड विच इन विच दे आर नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द मेन पॉलिटिकल ग्रुप या रिलीजन वाइज, भाई सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद और उनसे रिलेटेड आगे जाके कैलिफ्स वगैरह नहीं, दे आर स्टडिंग अबाउट द टोटल एरिया, द काइंड ऑफ इकोनॉमी जो थी, कल्चर जो था, लोगों के सोशल बिहेवियर जो थे, बिलीफ थे, उन सबको पढ़ रहे हैं विथ न्यू रिसर्चेस। ठीक है, तो समवेयर हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। एक चीज हमें यहाँ पे और ध्यान रखनी है, समटाइम्स इट विल बी सीन दैट जो वेस्टर्नर्स है, स्कॉलर्स, वो बहुत बार ओरिएंटलिस्ट हिस्ट्री को थोड़ा सा, ओरिएंटलिस्ट लोगों को थोड़ा क्या मानते हैं, समवेयर प्रॉब्लमैटिक मानते हैं। तो जब भी हम पढ़ेंगे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, अगेन एज आई सेड, वेयर वी विल टॉक अबाउट हाउ हिस्टोरियंस परसीव इट, एंड इट इज नॉट यू कैन से परसेप्शन ऑफ एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल। तो जब भी हम रिलीजन से रिलेटेड हिस्ट्री में कभी भी पढ़ेंगे, तो उसको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। वी शुड नॉट टेक इट कि ऐसे कैसे लिख दिया अबाउट दिस पर्टिकुलर रिलीजन, बिकॉज अपना रिलीजन अपनी जगह रखते हैं हम, बट हिस्ट्री को ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडे क्लास। आज थोड़ा ज्यादा थ्योरेटिकल था, बिकॉज हमें सिर्फ सोर्सेज जानने हैं कि कौन से सोर्सेज हमें किस पीरियड के बारे में क्या बताते। ठीक है, सो हियर एज आई सेड, बहुत बार होगा कि ओरिएंटलिज्म में कुछ हिस्टोरियंस थोड़ा सा कम मानेंगे ईस्टर्न वाली आइडियोलॉजीज को, पर कुछ ऐसे भी है जो उनको बहुत रिच सोर्सेज भी मानेंगे। ठीक है, so we also need to keep a neutral kind of point of view for this. Okay, so this is it for today. Just give this portion a reading, underline the important lines, because ज्यादा इसमें terms है जो आपको याद करनी है। उसके बाद now we will move on to the whole development in the form of story from our next class. Okay, so now if you have any problem, come back with your doubts, and we'll meet in the next class and proceed with the chapter. Okay.